Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning and good morning. So, all are present except one. Who is absent today? All present, है ना? 11 participants. Okay, fine. So, I have got the assignment from Mr. Akash Khatwani. And I have got the assignment and from Ankur Chauhan also. And प्रत्युष का तो पहले ही आ गया था. तो 3 out of 10 ना, आप 10 हैं टोटल, 10 में से 3 लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है. सर मैं आज व्हाट्सएप कर दूंगा सर. हाँ कर दीजिएगा, है ना? सभी लोग कर दें, सभी लोग कर दें. ये काउंट होते हैं असाइनमेंट, मतलब आपके टीए मार्क्स में, है ना? ये काउंट होते हैं. यदि आप सबमिट नहीं करेंगे देन आप टीए मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, है ना? जी सर, आज कर देंगे. बी केयरफुल, उसको सबमिट करिए. तो चलिए आज हम व्हाट वर वी डूइंग इन द लास्ट क्लास. I am just sharing the PPT first. Yes, PPT is visible in full mode. Yes or no? Yes sir. It is visible, है ना? It is visible. Okay. So in the last class we were discussing the truss problem. So we will continue that truss problem today, finding the displacement and strain. So in that truss problem there were 3 elements. First element were vertical, second and third element were inclined. They were inclined. So for this element, the angle was 53 degree. So it was inclined by 53 degree. So theta 1 was 53. Second element was inclined by, we have calculated this theta 2. So that was, I think, 127 degree. 127. कुछ गलत हो तो बता देना. And third element, theta 3, was 90 degree. So if I do the node numbering, then this is first node, this is second node, this is third node. Third node was under force of 50 kilonewton horizontally and 100 kilonewton vertically. It was given in question, and this is point number 4. This is point number 3. And if I mention the elements, so there are 3 elements, 4 nodes. So I am writing the elements in circle. So 1, 3 was the first element, 2, 3 was the second element, and 3, 4 was the third element. Okay. So we have calculated the stiffness matrices K1 for the first element, which are having size 4 by 4. For K2, again 4 by 4. K3, again 4 by 4. ठीक है, ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसको हम प्रूव भी करेंगे. तो फॉर जनरल फॉर्मूला क्या है, सबको याद होगा, सी स्क्वायर सी एस एस स्क्वायर, है ना? ठीक है, बस यही रिपीट हो जाता है. यहाँ पे माइनस साइन लग जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा सी स्क्वायर सी एस. सबको याद है ये फॉर्मूला, है ना? प्रत्युष ने काफी अच्छी ट्रिक बताई थी कि केवल इतना याद कर लो
और बाकी सब इधर नेगेटिव लगा दो, इधर नेगेटिव लगा दो और इधर पॉजिटिव लगा दो, है ना। So it is quite easy to memorize. So after combining all the three matrices K1, K2, K3, हमने एक नई मैट्रिक्स बना ली थी, that was 8 by 8. That matrix was 8 by 8. ये हमने पोस्टिंग भी कर ली थी लास्ट क्लास में, है ना. This work we have done. So now we will proceed further. We have to find the displacement at point 3. So question is asking to find U3 and V3. Horizontal displacement at 3 and vertical displacement at 3. So we are interested in finding U3 and V3 only. And the strain also. Strain in element 1, that is epsilon 1. In element 2, that is epsilon 2. And in element 3, that is epsilon 3. So these things we have to find, the displacements at point 3 and the elemental strains, strain in different elements. So this is a summary that we have done already in the last class. So now I am starting further. So I will use the global equation F equal to K delta. So this K is nothing, it is 8 by 8 matrix. It is 8 by 8 matrix that we have already calculated in the last class. This is global force vector. So this force vector is nothing, it is having some all the forces. So at point 1, there is F1x and F1y2 forces will be there. So these forces are basically the reaction forces at node number 1 because they are fixed. So these are basically the reactions F1x and F1y. Similarly here F2x and F2y, and here F4x and F4y, and at point 3 F3x is given 50 kilonewton. This is F3x, nothing, 50 kilonewton is F3x and 100 kilonewton is F4x. It is given in question. So F3x and F4x are given, other are unknown. So F is a vector in which all the forces will be listed. So F is F1x, F2x, F1x, F1y. So I am just writing F equal to K delta on the next slide. So F equal to K delta. I will use this basic equation. So for F, I will write F1x मीटिंग एंड कर दे, हो गई क्लास आज।
मीटिंग एंड करते, सर नहीं आ रहे, सर के नेटवर्क गए। आज के लिए बच्चों इतना ही। हाँ, एम आई ऑडिबल? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ सर। ओके आज ओके। नहीं चला। क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी? नेट डिस्कनेक्ट हुआ था? क्या हुआ था मेरे साथ? हाँ, कुछ मतलब मैं कनेक्टेड था या क्या हुआ था? मतलब कनेक्ट नहीं थे सर आप? कनेक्टेड था? नहीं थे कनेक्ट सर। अच्छा, तो नेट की प्रॉब्लम, नेट इश्यू हो गया था इसका मतलब। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर थे F इक्वल टू K डेल्टा। सो इन दिस F इक्वल टू K डेल्टा आई एम राइटिंग वेक्टर फॉर ग्लोबल फोर्स। तो वेक्टर फॉर ग्लोबल फोर्स इज F1x, F1y, F2x, F2y, F3x, F3y, and F4x, F4y. So this is the force vector.
I am writing this force vector in place of F. Then equal to, then there is a K vector which is 8 by 8 vector. So please बोलते जाइए, फर्स्ट रो बता दीजिए, व्हाट वाज द फर्स्ट रो फॉर द के. लास्ट टाइम आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो के का फर्स्ट रो क्या वैल्यूज थी? प्रत्युष बताएं या कोई भी बताएं, व्हाट वाज द वैल्यूज इन द फर्स्ट रो फॉर द के मैट्रिक्स. प्रत्युष सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए. 0.3621, ओके 0.4806, 4806, 4806, 0, देन 0, 0, एक और Zero. 0, हाँ, माइनस 0.3621, 0.3621. सर Then? ये 2 0 होंगे, तीसरा नहीं होगा. अच्छा, तीसरा जीरो नहीं है ना? नहीं, हाँ, ओके ओके ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ना, -0.3621. उसके बाद क्या है अगली वैल्यू? माइनस 0.4806, 0.4806. उसके बाद देन 0 0. हो गए पूरे 8. 1 2 Yes. 5 6 7 8. गुड. सेकंड रो बताइए. 0.4806, ओके 0.6378, ओके 0 0, 0 0. माइनस 0.4806, ओके माइनस 0.6378, ओके 0 0, ओके. नेक्स्ट रो. 0 0, हाँ 0.3621, हाँ minus 0.4806, ओके minus 0.3621, ओके 0.4806, ओके 0 0, ओके. नेक्स्ट रो. 0 0, हाँ minus 0.4806, ओके minus 0.6378, यस. 0.4806, -0.4806 के बाद हाँ, एक मिनट सर, देख लूं. या फोर्थ एलिमेंट बता रहे हैं ना? नहीं सर, फोर्थ एलिमेंट नहीं, मैं फिफ्थ बता रहा था. फोर्थ वाला है 0.6378, 6378. और पांचवा पांचवा 0.4806. पांचवा जो है 0.4806. यस सर. और छठा माइनस 0.6378, हाँ छठा बताइए. माइनस 0.6378, 6378. देन 0 0, ओके. नेक्स्ट रो. माइनस 0.3621, 0.3621 माइनस में है सर. माइनस में. माइनस 0.4806, ओके माइनस 0.3621, ओके 0.4806, चौथा एलिमेंट फिर से बताइए. 4806, 0.4806. उसके बाद सर उसके बाद ऐसे कंबाइन करके बताऊं या ऐसे ही, मतलब प्लस में है ना, दो दो है उसमें. हेलो हेलो सर. बोलो प्रतीश सर, तो गए मतलब? हाँ गए. सर के नेटवर्क सही नहीं है आज.
यस, क्या मैं ऑडिबल हूँ इस वक्त? यस सर। ओके, चलिए तो पांचवा पॉइंट बताइए, फिफ्थ रो का पांचवा वैल्यू क्या है? सर पांचवी कंबाइन करके बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जोड़ के, पूरा तीनों जोड़ के हाँ, वो बताइए आप। 0.7242 7242 है ना? 7242 0.7। 0.7242 नेक्स्ट, नेक्स्ट 0 देन 0 0। ओके, सिक्स्थ रो यस सर। माइनस 0.4806 ओके माइनस 0.6378 ओके 0.4806 ओके माइनस 0.6378 ओके 0 हाँ 3.7756। 3 पॉइंट है, यस सर। 7756 हाँ, देन 0 then 0। okay, then 0 0, right, next, seventh row, सर 0 0 नहीं है, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट -2.5 होगा। ये वाला, यस सर। चलिए -0.25 हो गया, अब सही है, कोई और यस सर। है ना? नेक्स्ट, सर नेक्स्ट में 0 0 हाँ 0 0 हाँ, सब में 0 ही है। ऑल हाँ ऑल। सेवंथ रो टोटली 0 आ गया पूरा, है ना? हाँ पूरा 0। चलिए और लास्ट वाले में 0 0 0 0 चारवा, 5 0 है पहले, हाँ देन -2.5, ओके देन 0, फिर 2.5। हाँ ओके, दिस इज द वैल्यू है। यस सर। ये 8x8 का मैट्रिक्स हो गया, और ये मैट्रिक्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, है ना? दैट वी हैव डन। अब आता है डेल्टा, तो डेल्टा को भी लिख देते हैं। डेल्टा क्या है हमारा? u1 v1, देन u2 v2, देन u3 v3, देन u4 v4. There are 4 nodes, so this is our delta. वो इक्वेशन f इक्वल टू k डेल्टा। अब इस इक्वेशन पे क्या करना है? अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो अब हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है ना, हमको ये देखना है। तो देखिए वापस हम फिगर पे आते हैं, हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है? द नोड नंबर 1 इज फिक्स्ड, because it is a fixed boundary condition, it means the displacement will be 0 here. So u1 is 0, v1 is 0. So this is the boundary condition. Okay? So I am writing this boundary condition over here. u1 is 0, v1 is 0. क्योंकि जब सपोर्ट फिक्स्ड है तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज फिक्स्ड, सो डिस्प्लेसमेंट्स विल बी 0. सिमिलरली नोड 2 इज आल्सो फिक्स्ड, दिस मींस u2 is 0, v2 is also 0. And similarly node 4 is fixed, u4 is 0, v4 is 0. ये हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस मिल गई u1 v1 की। सिमिलरली u2 0, v2 0, and u4 0 and v4 0. These are the boundary conditions, है ना? और क्या बाउंड्री कंडीशन है इसके अलावा? और बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट 3 है इस पर हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है ना? तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, इट मींस इट इज F3x. सो F3x इक्वल टू +50, है ना? आई विल राइट F3x इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, है ना? एंड F3y इक्वल टू 100 डाउनवर्ड, है ना? डाउनवर्ड होने की वजह से इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव, है ना? डाउनवर्ड देखो हमारी जो कन्वेंशन है वो ऐसे ही रहेंगी, पॉजिटिव एक्स, इधर कोई फोर्स है तो पॉजिटिव, इधर कोई फोर्स है नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, ठीक है? अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नेगेटिव. सो दिस 50 इज पॉजिटिव एंड दिस 100 इज नेगेटिव बिकॉज इट इज डाउनवर्ड. यदि अपवर्ड होता देन इट इज +100. So F3x is +50, F3y is -100.
So I am writing over here F3y is minus 100 kilonewton. These are the boundary conditions. If we apply these boundary conditions in this F equal to K delta, तो मैं बाउंड्री कंडीशन आपको अलग से लिखना होगा एग्जाम में, लेकिन मैं समय बचाने के लिए यहीं पे इसको मेंशन कर दे रहा हूं किसी और कलर से, है ना, फॉर द क्लैरिटी। तो बाउंड्री का कलर जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, U1 इज 0, तो देखिए मैंने इसकी जगह 0 कर दिया। V1 इज 0, U2 इज 0, V2 इज 0, U4 इज 0, V4 इज 0। ठीक है, ये मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी अपने मैट्रिक्स पर। और F3x इज 50, तो ये जो F3x है इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 50, मतलब 50 लिख दिया इसकी जगह, और F35 की जगह मैंने लिख दिया -100। ठीक है, सारी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई हो गई। अब बताओ ये बाउंड्री कंडीशंस जो हैं 0 0 वाली, ये कैसी बाउंड्री कंडीशन है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? बताइए कैसी बाउंड्री कंडीशन? दीज आर होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन में फर्स्ट रो को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो आई एम डिलीटिंग इट। सो फर्स्ट रो इज डिलीटेड, then first column will also be deleted. First column will also be deleted. Similarly, the second boundary condition is also 0. So second row will be deleted. Second row will be deleted. And second column will also be deleted. ध्यान से देखिएगा। Third boundary condition is again 0. So third row will be deleted. And third column will also be deleted. I am applying the homogeneous boundary condition. आज मुझे सुन पा रहे हैं ना? Am I audible? Yes sir. हाँ, तो देखिए 3 रो और 3 कॉलम डिलीट हो चुके हैं। Similarly, fourth boundary condition is again 0. So in the similar fashion, fourth row will be deleted, and fourth column will also be deleted. Okay. Now U3, V3 are non-zero. This is again boundary condition. The row number 7. So row number 7 will be deleted. Row number 5, 6 बची रहेंगी. Row number 7 will be deleted, and column number 7 will also be deleted. Okay. So this is column number 7. ठीक है. Similarly, the last row, it is again homogeneous boundary condition 0. So 8th row will be deleted. And 8th column will also be deleted. Clear? So after applying the boundary condition, what will remain? है ना? So after applying the boundary condition, the remaining part will be one vector F3x. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 50 and -100. ये देखिए 50 बच गया, -100 बच गया, बाकी सब तो डिलीट हो गया। सिमिलरली यदि आप इधर आते हैं तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो केवल ये है जो मैंने अभी देखिए एक सर्किल के अंदर बंद कर दिया। दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, बाकी सब डिलीट हो चुका है। तो आई कैन राइट इक्वल टू ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ओनली, 0.7242 0 0 and 3.7756. This will be the remaining, and here the remaining is U3 V3 only. So it is U3 and V3. तो देखिए जो 8x8 की मैट्रिक्स थी, that has been converted into 2x2 only after applying the boundary condition. यहां तक क्लियर है? मैं आगे चलता हूं फिर। यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, बस अब देखिए आपके पास 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है। इन दिस इक्वेशन, लेट दिस इक्वेशन इज A, so you are having only 2 unknowns, so you can find U3 and V3 from here. तो देखो कैसे बना सकते हैं। ये तो 0 ऑलरेडी है, बड़ी अच्छी बात है। ये 0 हमको करना पड़ता है, 0 ऑलरेडी है। So 0 U3
हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 टाइम्स U3, सो इट इज 0 प्लस 3.7756 V3 equal to minus 100. So from here V3 will be 100 by 3.7756. सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, प्लीज सॉल्व. 100 by minus 100 divided by, अच्छा एक चीज और रह रही है अभी, वी आर मिसिंग EA by L, यस सर, है ना. सो EA by L is here, EA by L. So what is EA by L? E की वैल्यू हमने लास्ट टाइम में निकाली थी ना, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ. EA by L, तो E was 200 into 10 to the power 6. एरिया हमारा कितना था, 50 मीटर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर, सर, 50 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट कितना था, सर, 50 लिया था हमने. हाँ इसके लिए 50 था, इसके लिए 50 था, दो के लिए 50 था. यस सर, और उसको 2.5 करके 50 कर लिया था हमने. हाँ हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो अब ये फैक्टर कॉमन है सबके लिए, है ना. तो 50-50 कैंसिल आउट, ओनली 200 into 10 to the power 6 विल रिमेन. तो ये हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये इंक्लूड करना है, 200 into 10 to the power 6. ये मत भूलिएगा, A by L साथ में चलेगा सारा, है ना. और बकायदा इसको प्रॉपर करिएगा, अगर लेंथ अलग अलग है तो इसकी वैल्यू अलग अलग आती है, तो उसको अपने तरीके से आप गुणा भाग में लेके आइए, है ना. सो 200 into 10 to the power 6. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 200 EA by L 200 into 10 to the power 6, तो हमारा जो है इधर आ जाएगा एक तरह से, है ना, डिवाइड में चला जाएगा. ये 200 10 to the power 6 किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, है ना. तो हम लिख सकते हैं -100 डिवाइडेड बाय 200 into 10 to the power 6, ऐसे लिख सकते हैं ना. ये डिवाइड में चला जाएगा इधर लेफ्ट साइड जाने पे, तो ये इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बी -100 by 200 10 power 6. अब V3 बताइए कितना आएगा, और ये और आएगा क्या बोलते हैं 3.7756, ये तो है ही है ना, तो उससे भी डिवाइड होगा इधर आके. तो फाइनल सॉल्यूशन बताइए V3 कितना आ रहा है. सर, V3 हाँ -0.1324 माइक्रोमीटर. अच्छा आपने यूनिट चेंज कर दिया, आप बिना यूनिट चेंज करे बताइए कितना आ रहा है. -1.324 into 10 power -7. और -7, ये मीटर्स में आ रहा है, ठीक है ना. मीटर्स में, ओके. अब इसको मिलीमीटर्स में यदि चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से, है ना. तो आपने माइक्रोमीटर में बता दिया, चलो वही लिख देते हैं, -0.1324 माइक्रोमीटर. यही था प्रत्युष आंसर V3 का. यस सर. चलिए एक आंसर तो हमारा निकल गया कि V3 की वैल्यू इतनी आएगी, इतने ही माइक्रोमीटर वो डिस्प्लेसमेंट आएगा. अब U3 निकाल लीजिए, तो U3 यहीं से निकल जाएगा, 0.7242 U3 प्लस 0 टाइम्स V3, तो 0.7242 U3, है ना. तो इसको निकालिए कि क्या लिख सकते हैं हम, 0.7242 U3, मैं इधर लिख देता हूँ, 0.7242 U3 प्लस 0 V3 इक्वल टू कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 200 into 10 to the power 6, to 50 divided by 200 into 10 to the power 6. बताइए V3 की वैल्यू ये डायरेक्ट. सर, 3.42452 into 10 power -7. 3.42452. 452. हाँ, 452. 45 तक ले लेते हैं. सर, 42 नहीं है सर, 452 ओके, 452 into 10 to the power -7. 7 मीटर्स, है ना. यस सर. ये हो जाएगा 0.3452 माइक्रोमीटर V3.
ये Yes, ठीक yes. है, गुड, ठीक है, डन। तो अब देखो हमारे क्वेश्चन में जो था, हमें क्या निकालना था, U3 और V3 निकालना था। तो U3 V3 तो हम निकाल चुके, U3 भी निकाल चुके, V3 भी निकाल चुके, दोनों काम हो गया। अब इस क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐड कर देता हूं कि क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। फाइंड में एक और चीज मैं इंक्रीज कर रहा हूं, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एट नोड 1, 2 एंड 4। ठीक है, रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं नोड नंबर 1 पे। तो नोड नंबर 1 पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यूज क्या हैं, एक तो F1x है और दूसरा F1y है। जो फोर्स हैं ये रिएक्शन फोर्सेस है, ठीक है। तो आपको F1x भी निकालना है, F1y भी निकालना है, F2x भी निकालना है, F2y भी निकालना है, सिमिलरली F4x भी निकालना है, F4y भी निकालना है, राइट। तो अब F1x का मैं तरीका बता देता हूं, जैसे ये निकलेगा वैसे ही सारे निकल जाएंगे, ठीक है। सर एक सेकंड। हाँ नरेंद्र, मैं जरा क्लास में हूँ, थोड़ी देर में मिलाओगे? हाँ थोड़ी देर। हाँ प्रत्युष क्या कह रहे थे? सर इसमें स्ट्रेन के लिए भी आपने बोला था, डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेन एट हाँ पॉइंट स्ट्रेन पे भी आएंगे, अभी हम अच्छा ठीक के बाद आएंगे स्ट्रेन पर, है ना। ठीक है। हाँ इसके बाद आएंगे। तो अब हमें इसमें रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास ये 8x8 की मैट्रिक्स ये है, ये पूरी F इक्वल टू K डेल्टा। तो बस इसमें हम देखो F1x को कैसे निकाल सकते हैं। F1x विल बी 0.3621 इंटू 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो को, प्लस 0.4806 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, माइनस 0.3621 इंटू U3, माइनस 0.4806 इंटू V3, बाकी सब 0 0 है। तो F1x फाइंड हो जाएगा पहली वाली रो के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो F1x को मैं जरा बता दूं, देखो ये तो J0 हो गया, ये 0 शुरू के 4 0 हैं, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, केवल ये दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। सो दिस मच U3 एंड दिस मच V3। तो F1x विल बी, मैं इसको अगली स्लाइड में बता, F1x विल बी this much U3 minus 0.3621 U3, 0.3621 U3, U3 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, निकाल चुके ना U3 हम, U3 हमारा आया है 3.452 इंटू 10⁻⁻⁷। मीटर वाली यूनिट लिखेंगे 3.452 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस this much V3, ये भी नेगेटिव है 0.4806, 0.4806 प्लस यहां माइनस ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई V3। V3 की वैल्यू हमारी आई है माइनस में 1.324, 1.324 इंटू 10⁻⁻⁷। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आया। सर माइनस 12.27 किलो न्यूटन, माइनस 12.27 किलो न्यूटन आंसर है टोटल आंसर है ना, माइनस में। तो इसमें आपने EA/L भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ यस, वो भी करना है ना, दिस EA/L है ना, दिस इज आल्सो देयर। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या थी 200 इंटू 10⁻⁶, है ना। तो इसमें 200 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा। आपने मल्टीप्लाई करके आंसर दिया है ना? यस सर, मल्टीप्लाई करके। हाँ वेरी गुड है ना। तो मैं इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करके और इसमें 200 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ गया माइनस 12.27 किलो न्यूटन। सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो नेगेटिव आने का मतलब है कि ये इस तरफ एक्ट कर रहा है ना, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है, माइनस 12.27।
सिमिलरली यू कैन फाइंड f1y। तो जरा जल्दी से बता दीजिए, आपको समझ में आ ही गया होगा क्या वैल्यू आएगी f1y की। दिस मच u3, दिस मच v3। बताओ ये क्लियर है कि नहीं सबको? सेकंड वाली रो से f1y निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है बस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। शुरू के 4 टर्म 0, लास्ट के 2 टर्म 0, बस मिडिल के जो 2 टर्म है वो ही काम के हैं। तो बताएं जरा कितना आएगा। हाँ f1y बता दीजिए कितना आएगा। 28 f1y बता रहा हूँ सर, -16.28 किलो न्यूटन। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी करें, कैलकुलेटर चलाएं। तो देखिए f आ गया। अब हम आते हैं इधर f2x पर। तो f2x थर्ड रो से निकाल सकते हैं, ये भी मेरे ख्याल से वही हो जाएगा, दिस मच u3, दिस मच v3। बता दीजिए प्रत्युष कितना आ रहा है। सर एक सेट में निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ निकालिए निकालिए। हाँ अंकुर चौहान और लवकेश सचिन वगैरह बताएं, आपको की प्रोसेस क्लियर हो रही है? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, हो रही है। क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। तो बताओ f कितना आएगा? दिस मच u3 प्लस दिस मच v3, यही करना है, मल्टीप्लाई। f2x f2y बताइए कितना, जिसका भी आ जाए आंसर दे। यस सर -37.72। है। सर अभी निकाल रहा हूँ ये वाला। बाकी लोगों के पास कैलकुलेटर है या नहीं? आजकल तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, इसी से कर लो। बता दो फटाफट, फिर हम स्ट्रेन पे चलेंगे। स्ट्रेन, वी विल कवर द स्ट्रेन पार्ट। सर ये पॉजिटिव आ रहा है 50.07। 50.07 है ना? ओके, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है ना? अपवर्ड है। अच्छा, अब f3x f3y तो रिएक्शन फोर्स है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिए हुए थे, 50 किलो न्यूटन और -100, ये तो दिए हुए थे ना। तो अब हमको f4x चाहिए। तो f4x देखो 0 0 सब 0 है, तो f4x तो 0 ही हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा सर। और f4y वो भी 0 हो जाएगा। नहीं यस सर। वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा सर, -0.50। हाँ उसमें एक पॉइंट है ना ये वाला। तो f4 नॉट बी 0, 0 इंटू u3 प्लस -2.5 इंटू v3 है ना। तो इसको भी सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ रहा है। तो f4x तो 0 हो जाएगा, नो डाउट इन दिस, 0 किलो न्यूटन। एंड f4y विल बी -2.5 v3 इंटू 200 इंटू 10⁶, वो सब में चलेगा 210⁶ E by L। इट इज बेटर कि आप E by L को कॉमन बना, है ना, जैसे हमने बनाया है अभी। f4y सर ये हो जाएगा 66.215। 66.215 पॉजिटिव आ रहा है।
या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आएगा नहीं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। हाँ Positive आएगा पॉजिटिव हो तो- जाएगा, पॉजिटिव क्योंकि V3 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। गुड। तो देखो हमने कुल कितने रिएक्शन फोर्स निकाले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रिएक्शन फोर्सेस हमने निकाल लिए। और हमने डिस्प्लेसमेंट्स कितने निकाले? 2 डिस्प्लेसमेंट्स निकाले हमने। कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट? U3 V3 है ना, डिस्प्लेसमेंट्स हमने निकाले U3 और V3। और रिएक्शन फोर्स हमने निकाले F1x F1y F2x F2y F4x F4y। तो कुल अननोन कितने निकाल लिए हमने? कितने अननोन निकाल लिए बताओ? 8 अननोन्स। 8 निकाल ली। 8x की मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड 8 अननोन्स। बात समझ में आ रही? यस सर। हाँ 8 अननोन आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको देखो कितने कितने चीजें नोन हैं, बाउंड्री कंडीशन कितनी नोन है ये भी चेक करो। हाउ मेनी बाउंड्री कंडीशंस आर नोन टू यू? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाउंड्री कंडीशन नोन है और 8 अननोन है, अननोन पैरामीटर्स है। तो 8 आर नोन पैरामीटर्स, 8 आर अननोन पैरामीटर्स। तो ये कॉमन मैथमेटिक्स भी है कि यदि आपके पास 8 इक्वेशन है देन यू कैन फाइंड 8 अननोन्स, ठीक है। तो ये हमने 8 अननोन निकाली। अब बचा पार्ट स्ट्रेन का, है ना। तो टाइम हमारा इस लेक्चर का हो गया है। वी विल कंटिन्यू इन दिस, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर नाउ। वी विल कंटिन्यू जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स, है ना, for the next lecture. In that lecture we will calculate the strains in the different elements. Okay, so if you have any doubt please ask, otherwise I will end.